ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ دن میری زندگی کا ناقابل فراموش دن تھا جب میں نے اپنی اماں کی حقیقت کو جانا۔ اس دن کو آج بھی سوچتی ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے۔ کاش میری ماں نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو آج میری یادوں میں ایک کالی حقیقت سام بن کر نہ چھپی ہوتی۔ میرا بچپن مٹی کی خوشبو کے ساتھ گزرا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا اپنے بابا کو مٹی کے برتن بناتے دیکھا۔ بابا نے یہ کام اپنے بابا سے سیکھا تھا، یعنی یہ ہمارا خاندانی پیشہ تھا۔ میرے بابا کچی مٹی سے مٹی کے برتن بناتے، کھلونے بناتے اور اماں ان برتنوں اور کھلونوں کو بھٹی میں آگ جلا کر پکایا کرتی، اور پھر اماں ابا دونوں مل کر ان پر رنگ روغن کرتے اور دوبارہ پکاتے۔ اس طرح جب وہ برتن تیار ہو جاتے تو بابا ان کو لے جا کر گاؤں کے قریب والے بازار میں بیچ آتے، جو تقریباً شہر سے جڑا ہوا تھا۔ ان برتنوں سے گزارے لائق آمدنی ہو جایا کرتی تھی، مگر بابا نے ہمیشہ حلال روزی رزق کا ہی کہا کہ کم مل جائے مگر حق حلال کا ہو۔ میں اپنے اماں ابا کی ایک لوتی اولاد تھی۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا جو میرے ساتھ کھیلتا، اسی لیے میں نے بچپن سے ہی مٹی کے کھلونوں سے دوستی کر لی تھی۔ اماں بابا مٹی کے برتن اور کھلونے بنانے کا کام کرتے اور میں وہیں پاس بیٹھی کچی گیلی مٹی سے کھیلتی رہتی۔ مجھے بھی چھوٹے موٹے کھلونے بنانا آ گیا تھا، مگر وہ کھلونے صرف میرے کھیلنے کے لیے ہوتے تھے۔ مجھے بچپن سے ہی مہندی لگانے کا بہت شوق تھا، اور مٹی کے کھلونے بنا کر میں ان میں مہندی بھگو دیتی اور اماں میرے ہاتھوں پر مہندی لگائے رکھتی۔ میرا نام بھی میرے بابا نے ہینا رکھا تھا۔ بابا مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ گاؤں میں ایک ہی اسکول تھا جہاں بابا نے میرا داخلہ کروا دیا، اور پھر میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنائے مٹی کے کھلونے بھی اسکول لے جاتی، جو مجھ سے میری سہیلیاں 1-2 روپے میں خرید لیتی۔ اس طرح میں ان پیسوں سے کوئی نہ کوئی چیز کھا لیا کرتی تھی۔ زندگی اتنی مشکل نہیں تھی، مگر اتنی آسانی سے بھی نہیں گزر رہی تھی کہ جو مانگا وہ فوراً مل جاتا۔ کبھی کبھی گھر میں گوشت بنتا، ورنہ اماں بہت کوشش کر کے بہت تھوڑے سے پیسوں میں ہی گزارا کر لیا کرتی تھی۔ گوشت بھی بابا میرے کہنے پر لاتے تھے۔ میرے بابا چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں تاکہ زندگی میں مشکلات کم ہو سکیں۔ پھر ایک واقعہ میری زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کا سبب بنا۔ اس وقت میں 2ری جماعت میں تھی۔ جب اسکول سے گھر جا رہی تھی تو اچانک ہمارے گھر کے برابر میں رہنے والا لڑکا بھاگتا ہوا مجھے راستے میں ملا، اور اس نے مجھے کہا کہ جلدی گھر چلو، تمہارے بابا کا شہر سے آتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے ننھے سے دل پر کسی بجلی کی طرح گری تھی۔ میں بھاگم بھاگ گھر پہنچی تو گھر میں کچھ لوگ جمع تھے اور اماں رو رہی تھی۔ میں نے اماں سے جا کر پوچھا کہ بابا کہاں ہیں؟ اماں مجھے سینے سے لگا کر اور رونے لگیں اور کہنے لگیں تیرے بابا ہم دونوں کو بے سہارا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کی بات پر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ بھلا میرے بابا اپنی ہنا کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ مگر ہونی کو کون ٹال سکتا تھا؟ کچھ دیر میں بابا کی میت گھر آ گئی۔ قیامت کی اس گھڑی میں گاؤں والے ہمارے ساتھ تھے، جبکہ رشتہ داروں نے صرف دنیا دکھاوے کے لیے میت کا کاندھا دیا، اور پھر حوصلے کے 2 بول کہتے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیے۔ بابا کے جانے کے 3-4 دن تک گاؤں والے ہی ہمیں روٹی دیتے رہے، اور کبھی کوئی عورت اماں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تو کبھی کوئی خبر لینے آ جاتی۔ اماں کا گاؤں کی عورتوں سے اچھا میل جول تھا، اور اب دکھ سکھ کا وہی ساتھ ہمارے کام آ رہا تھا۔ میں اسکول بھی نہیں جا رہی تھی، بس ہر وقت گمسم سی ایک جگہ بیٹھی بابا کے مٹی کے برتنوں کو دیکھتی رہتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے بابا اب بھی مٹی کا مٹکا بنا رہے ہیں اور پھر مجھے آواز دیں گے کہ ہنا جا جلدی سے میری رنگ والی ڈبیاں اٹھا کر لا۔ مگر افسوس، اب بابا کی یادیں تو باقی تھیں مگر آواز دینے والا خود نہیں تھا۔ کچی مٹی بھی اداس پڑی تھی اور رنگوں کی ڈبیاں بھی دکھ کی چادر اوڑھے بیٹھی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ہماری زندگی سے ہر خوشی ہی روٹھ چکی تھی، مگر پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میری اماں عدت پہ تھی، اسی لیے اماں نے پڑوسن خالہ سے بات کی کہ وہ برتن بنا دیا کروں گی تو ان کا لڑکا جا کر بازار میں بیچ آیا کرے۔ جب تک اماں کی عدت ہے، اس کے بعد اماں خود چلی جایا کریں گی۔ پڑوسن خالہ نے بہت مدد کی اور پھر سے ہمارے گھر میں چولہا جلنے لگا۔ اماں کچی مٹی کو پانی سے گوندتی اور پھر برتن بناتی۔ اماں بے شک ابا کا ساتھ شروع سے دیتی آ رہی تھی، مگر اماں کے ہاتھ میں ابا والی صفائی نہیں تھی۔ برتن بن تو جاتے مگر ان کے دام اب کم ملا کرتے تھے، پر ہمارے لیے ابھی اتنا ہی بہت تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل ہمارا چھوٹا سا گھر، جس کے صحن کے دائیں جانب برتن بنانے کا انتظام کر رکھا تھا ابا نے، اور بائیں جانب اماں کا باورچی خانہ تھا۔
अब अम्मा दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चक्कर काटती रहती थी। घर का सारा काम करती, 7 बर्तन बनाती, उनको भट्टी में पकाती और फिर रंग करती। और जब बर्तन तैयार हो जाते तो अम्मा पड़ोसन खाला को बुलाकर उनके बेटे के हाथ बाजार में भिजवा देती। वो उन बर्तनों और खिलौनों को बेचकर पैसे अम्मा को ला देता, तो अम्मा कोई 1-2 रुपये उसको भी दे दिया करती ताकि वो हमारा ये काम करता रहे। मैं 2 हफ्तों से स्कूल ही नहीं गई थी। फिर अम्मा ने मुझे स्कूल जाने का कहा और अम्मा कुछ खिलौने बनाकर मुझे देती कि स्कूल में बेच कर आना। उन खिलौनों को बेचकर मुझे जो पैसे मिलते अब वो मैं अम्मा को दे दिया करती थी। और अम्मा खाने पीने की चीज़ों के साथ मेरे स्कूल के लिए कभी कॉपी तो कभी पेंसिल मंगवा लेती, मगर किसी तरह भी हमारी ज़रूरतों के लिए ये चंद रुपये काफ़ी नहीं थे। अम्मा को सिलाई कढ़ाई का काम नहीं आता था कि उससे कुछ गुजर बसर में आसानी हो जाती। एक दिन मैं स्कूल से आई तो अम्मा के पास पड़ोसन खाला अपने सर दर्द के लिए दम करवाने आई हुई थी, क्योंकि अम्मा को कुछ दम दरूद करना जानती थी। अक्सर आस पड़ोस से औरतें अपने बच्चों को दम करवाने अम्मा के पास आ जाया करती थी और कहती थी कि अम्मा के दम में तासीर है, बच्चा ठीक हो जाता है। अम्मा ने जब पड़ोसन को दम किया तो उसने जाते हुए अम्मा को 50 रुपये का नोट थमा दिया कि हिना को कुछ खिला देना। अम्मा कुछ हैरान सी पैसों की तरफ देखने लगी। मैंने अम्मा से पूछा कि क्या हुआ, तो अम्मा ने कुछ नहीं कहकर मुझे कपड़े बदलने भेज दिया और फिर हम दोनों खाना खाने लगे। रात को मैं और अम्मा सहन में चारपाइयाँ डाले सोने के लिए लेटे हुए थे तो अम्मा ने मुझसे कुछ कहा, जिसे सुनकर मैं फौरन उठकर बैठ गई। दरअसल मेरे और अम्मा के अलावा घर में तो कोई और अब था नहीं जिससे अम्मा अपने दिल की कोई बात करती, इसीलिए अम्मा ने वो बात मुझे ही कह डाली। अम्मा ने कहा कि मैं सोच रही हूँ क्यों ना बर्तन बनाने का काम करने के साथ साथ मैं दम दरूद का काम भी हदिया लेकर करना शुरू कर दूँ। वैसे भी तो औरतें दम करवाने आती हैं, अगर कुछ हदिया दे दिया करेंगी तो हमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। मैं उस वक्त थी तो बच्ची, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि माँ को कोई मशवरा देती, मगर पैसों का सुनकर मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी और मैं खुश हो गई। फ़ौरन उठकर बैठी और अम्मा से कहने लगी कि ये बहुत अच्छा ख्याल है। फिर अम्मा ने ऐसा ही करना शुरू किया। पड़ोसन खाला से गांव की औरतों को कहलवा दिया कि वे अपने बच्चों को दम दरूद करवाने का हदिया दे दिया करो ताकि माँ बेटी का कुछ भला हो जाए। अगले ही दिन एक औरत अपनी बेटी को दम करवाने के लिए लाई कि बच्ची के सर में बहुत दर्द रहता है। अम्मा ने उसे नज़र का दम किया और मज़ीद 3 दिन आने का कहा। जब उसने हदिये का पूछा तो अम्मा ने कहा 10 रुपये से जितना चाहे दे दो। वो औरत 20 रुपये देकर चली गई। इस तरह वो मुसलसल 3 दिन आती रही, कभी 20 तो कभी 50 रुपये दे जाती और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी औरतें भी अपने बच्चों और बच्चियों को दम करवाने अम्मा के पास लाती। किसी को सर दर्द का मसला, किसी को नज़र का असर, तो कोई ज़िद करने में शेर था। अम्मा दम करती तो पहले ही दम में अफाका होता और फिर अम्मा हर बच्चे को कम से कम 3 दिन बुलाती। ऐसे कुछ पैसे घर बैठे मिलने लगे, जिससे अम्मा दाल सब्जी दवा दारू या मेरी पढ़ाई की कोई ना कोई चीज़ मंगवा देती। वक्त के बेल में ज़िंदगी की गाड़ी जोते हम माँ बेटी गुजर बसर करने लगे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी मैं भी बर्तन बनाने का काम सीखती जा रही थी। अब अम्मा के साथ कुछ बर्तन और खिलौने मैं भी बनाती, उनको पकाना और रंग करना भी सीख गई थी। इस तरह अम्मा के काम में सहूलत होने लगी और वो अपना दम करने का भी तवज्जो से करने लगी। अब अम्मा खुद बाजार जाकर बराबर वाले लड़के के साथ बर्तन दुकानों पर दे आती और नकद पैसे ले आती। दूसरी तरफ अम्मा का दम दरूद का सिलसिला भी दूर तक मशहूर हो गया था। अब तो लोग दूसरे गांव से भी आने लगे थे, मगर इतनी मेहनत के बावजूद हमारी आमदन ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई थी। हमारे अपने और दूसरे गांव से आने वाले लोग कभी कभी पैसों के अलावा गेहूं, दाल, चावल या कपड़े वगैरह भी हदिये के तौर पर दे जाते। अब मैंने स्कूल में 8 जमातें पढ़ ली थी। मज़ीद पढ़ने का कोई इरादा न था, क्योंकि मेरी माँ पहले से कमज़ोर हो गई थी और उसे मेरे सहारे की ज़रूरत थी। मैंने काफ़ी कद निकाल लिया था और अपनी उम्र से बड़ी दिखाई देती थी। अब अम्मा को घर चलाने के साथ साथ मेरी शादी के लिए भी कुछ ना कुछ जोड़ने और बनाने की फ़िक्र रहती थी। अम्मा पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगी। जहाँ एक दिन में 3 बर्तन बनाती थी, अब 6 बनाने लगी, क्योंकि बर्तनों का पकाने और रंगने का काम मैं करती थी। दम करने वाली औरतों का भी खूब आना जाना लगा रहता। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का दिल और नीयत कब भरती है, जितना मिले उतना कम है, और ज़रूरतों का अश्तहा मुँह खोले बैठा था। फिर अचानक एक दिन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक नया बाब खुला। हुआ कुछ यूँ कि एक दोपहर हम माँ बेटी खाना खा के फारिग हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। गर्मी का मौसम था, यूं लग रहा था जैसे सारा गांव सो गया हो।
खामोशी और सन्नाटे का राज था। दस्तक होने पर अम्मा ने दरवाज़ा खोला तो एक फकीरनी अपने गंदे बालों में खारिश करते हुए दरवाजे पर खड़ी मिली। अम्मा ने उससे कुछ कहना चाहा, उससे पहले ही वो बोल पड़ी कि मेरे बच्चे को बहुत तेज़ बुखार है, इसे दम करवाना है। अम्मा ने इधर उधर देखते हुए बच्चे का पूछा तो वो कहने लगी कि उसे साथ नहीं लाई क्योंकि गर्मी बहुत है और बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। अम्मा ने कहा कि मैं दम करने का हदिया लेती हूँ। फकीरनी ने फ़ौरन जवाब दिया कि जितना चाहे हदिया ले लेना, मगर मेरे साथ चलो, मेरे बच्चे को दम कर दो। दवा दारू करके देख लिया मगर उसका बुखार नहीं उतरता। अम्मा ने 2 पल के लिए कुछ सोचा और फिर चादर ओढ़कर मुझे दरवाज़ा बंद करके कहने का कहकर फकीरनी के साथ चली गई। मुझे डर भी लग रहा था मगर अम्मा ने दुनिया देख रखी थी। अपने दिल को तसल्ली देते हुए मैं कमरे में जाकर लेट गई और अम्मा का इंतज़ार करते करते कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। शाम को मेरी आंख खुली तो अम्मा अब तक लौट कर नहीं आई थी। मैं परेशान हो गई मगर मैं क्या कर सकती थी, इसीलिए चुप करके अम्मा का इंतज़ार करने लग गई। अब तो अंधेरा फैल चुका था। इंतज़ार में यहाँ वहाँ टहलने के बाद मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। आखिर अम्मा अब तक वापस क्यों नहीं आई, बल्कि मैंने उनको उस फकीरनी के साथ जाने ही क्यों दिया। जब इशा की अजान के बाद भी अम्मा वापस नहीं आई तो मैं पड़ोसन वाली खाला के घर गई और उनको बताया कि मेरी अम्मा आज किसी फकीरनी के साथ दम करने चली गई और अब तक वापस नहीं आई। खाला ने कहा 1 आध घंटा मज़ीद इंतज़ार कर लो, मैं तब तक अपने बेटे को भेजती हूँ, वो आस पास देख आएगा। मैं घर वापस आ गई। कोई 15-20 मिनट गुजरे होंगे कि अम्मा घर आई। मेरी जान में जान आ गई। अम्मा के आते ही मैं अम्मा से लिपट कर रोने लगी और पूछा कि इतनी देर कहाँ लगा दी। तो अम्मा ने मुझे प्यार किया और दिलासा दिया कि बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो 2-3 मरतबा वक्फे के साथ दम करना था और आखिरी दम इशा के बाद था, इसी वजह से इतनी देर हो गई। अम्मा की बात सुनकर मुझे तसल्ली तो हुई मगर मैं बहुत डर भी गई थी कि अगर अम्मा आज वापस न आती तो मेरा क्या होता। फिर हमने खाना खाया और उसके बाद अम्मा पैसे गिनने लगी। मैंने 10, 20 और 50 के नोट देखे तो झट से सवाल किया कि इतने पैसे एकदम कहाँ से आ गए। तो मेरी अम्मा ने मुझे फकीरनी का बताया कि उसने अपने बेटे को दम करने का हदिया दिया है। मैं तो ये सुनकर बड़ी हैरान हुई। इतने सालों में अम्मा को दम करने के किसी ने 100 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं दिए थे और एक फ़कीरनी ने एक ही दिन में कोई 1000 के करीब पैसे दिए। अम्मा कहने लगी कि भाई फ़कीरनी के बेटे का बुखार उतर गया था तो एक माँ ने खुश होकर अपनी जमा पूंजी में से कुछ नजराना दे दिया, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं भी अम्मा की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और फिर अम्मा से बातें करते करते सो गई। फिर हर दूसरे दिन ये होने लगा कि वो फ़कीरनी आती और अम्मा को अपने साथ ले जाती। वो अक्सर दोपहर से कुछ पहले आया करती और अम्मा उसके साथ चली जाती और फिर रात देर तक मैं इंतज़ार करती रहती। अम्मा अंधेरा गहरा होने के बाद लौटती और अम्मा के पास इतने सारे पैसे होते जिन्हें गिन कर रख लेती। मेरे पूछने पर बताती कि फ़कीरनी ने अपनी बस्ती की और लोगों के मेरा दम का बताया तो वो भी दम करवाते हैं। मैंने अम्मा से कहा कि अगर उनको दम करवाना है तो बाकी सब की तरह हमारे घर आ जाया करें, आप क्यों जाती हैं बार बार। तो अम्मा ने जवाब दिया, ये ऐसे गांव के घरों में फ़कीरों का आना जाना मायूब समझा जाता है, भला ऐसे कोई फ़कीर किसी के घर आता है क्या, इसीलिए मैं चली जाती हूँ। इसमें क्या है, अगर किसी का भला हो रहा है और 4 पैसे हमें भी मिल जाते हैं। अम्मा की बातों से मैं मुतमईन हो गई और वैसे भी अच्छा ही है, अगर हमें इतने पैसे मिलने लग जाएं तो हमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ज़रूरतें भी आसानी से पूरी हो जाया करेंगी। पहले अम्मा 2-3 दिन बाद जाया करती थी, लेकिन फिर रोज़ जाना शुरू कर दिया और पहले दोपहर के वक्त जाती थी, अब सुबह नाश्ते के बाद चली जाती और रात को लौटती। मैं पीछे सारा दिन बर्तनों को संभालने और घर के कामकाज के बाद अम्मा का इंतज़ार करती रहती। मुझे समझ नहीं आता था कि कौन सा दम दरूद का काम मिल गया है जो अम्मा रोज़ जाती हैं, सुबह से रात कर देती हैं और अब रोज़ पहले से ज़्यादा पैसे लाया करती थी। वापस आने के बाद खाना खाती और पैसे गिनने बैठ जाती। आहिस्ता आहिस्ता बात चंद 100 रुपयों से हज़ारों तक पहुंचती जा रही थी। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि आज अम्मा से पूरी तफसील पूछूंगी, बल्कि अम्मा को कहूँगी कि किसी दिन मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। फिर जब उस दिन अम्मा रात को लौटी तो मैंने कहा कि सारा दिन दम करवाने वाली औरतें पूछती रहती हैं और बर्तन खिलौने बनाने का काम भी नहीं हो पाता। तो अम्मा कहने लगी, अब हम बर्तनों का काम नहीं करेंगे, ना मैं गांव वालों के लिए दम दरूद का काम करूंगी, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा कमाने वाला अच्छा काम मिल गया है। मैं तो पहले ही तय करके बैठी थी कि लाजमी अम्मा से बात करूंगी। तो मैंने अम्मा से पूछ लिया, आखिर ऐसा कौन सा काम है।
अम्मा कहने लगीं कि फ़कीरनी ने कुछ महंगे और बड़े इलाके में जहाँ कोठियाँ हैं वहाँ मेरे दम दरूद के असर का जिक्र किया तो वो कोठियों वाली बेगम साहिबा हैं जो मुझे अपने मुख्तलिफ मसाइल के लिए बुलाती हैं, दम दरूद करवाती हैं और ये देख कितने पैसे मिल जाते हैं। अम्मा ने 100-100, 500-500 के नोट मेरे सामने लहरा दिए। मैं ये सब सुनकर बड़ी हैरान हुई और अम्मा से कहा कि किसी दिन मुझे भी अपने साथ ले चलो ताकि मैं भी किसी बड़ी सी कोठी में ठंडी ठंडी एसी की हवा खा सकूं और वहाँ मज़े मज़े का खाना भी तो मिलता होगा ना। अम्मा कहने लगीं कि वो किसी के घर खाना नहीं खाती और जवान लड़की को लेकर किसी की कोठियों में जाना अच्छी बात नहीं, यूं ही लोगों की नज़रें और नीयत ख़राब हो जाती है। अम्मा के ये सब कहने पर मैंने मुंह बना लिया और फिर एक सवाल दाग दिया जिसे सुनकर अम्मा को गुस्सा आ गया। मैंने पूछा, अगर अम्मा आप कोठियों पर जाती हैं दम करने तो रोज़ रात को आकर इतना थक क्यों जाती हैं और सुबह जो जोड़ा पहन कर जाती हैं कभी कभी वापसी पर दूसरा कैसे पहना होता है। मेरे सवाल पर अम्मा ने मुझे डांटा कि मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं वही काफ़ी है, ज़्यादा बातें बनाने और सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खामोश हो गई और चुप करके सो गई। ऐसे ही अब रूटीन बनती जा रही थी। अम्मा रोज़ सुबह घर से चली जाती और रात को काफ़ी सारे पैसे लेकर घर आती। अब तो गांव की औरतें भी सवाल करने लगी थी, मगर मैंने उनसे कहा कि अम्मा को बड़ी कोठी पर काम मिल गया है। और फिर एक दिन अम्मा ने मेरे सर पर एक बम फोड़ दिया, वो ये कि अम्मा गांव छोड़कर शहर जाना चाहती थी और मैं इस फैसले को समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे और क्यों कर होगा। फिर अम्मा ने मुझे समझाया कि शहर जाकर रहेंगे तो आमदनी के ज़राए भी बढ़ेंगे, वहाँ अमीर अमीर लोग जो होते हैं, और फिर मेरे अच्छे रिश्ते में भी आसानी होगी। अम्मा की बातें सुनकर मैंने भी हाँ कर दी और फिर हम शहर जाने के लिए तैयारी करने लगे। अम्मा ने हमारा ये कच्चा पक्का छोटा सा घर बेच दिया और शहर में एक घर किराए पर ले लिया। ये शहर इतना बड़ा नहीं था, मगर हमारे गांव से तो बहुत बड़ा था और गांव से बिल्कुल करीब था। पता नहीं अम्मा ने किसकी मदद से यहाँ घर लिया था और सारा इंतज़ाम किया। जो भी था, मैं तो इस घर में आकर बहुत ज़्यादा खुश थी। पक्का घर था जिसमें 3 कमरे, बरामदा और छोटा सा सहन था। किचन भी बहुत अच्छा बना हुआ था और घर में थोड़ा बहुत फर्नीचर भी मौजूद था। और फिर अम्मा ने नया फर्नीचर डलवा लिया। अब अम्मा अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में सोया करती थी। शहर आने के बाद भी अम्मा के काम वही रूटीन रही। वो रोज़ सुबह सुबह नाश्ता करके कुछ खाने पीने की चीज़ें साथ बांध कर ले जाती और रात को अंधेरा गहरा होने के बाद लौटती। कभी कभी उन्हीं कपड़ों में लौट आती जिनमें जाती थीं और कभी दूसरा जोड़ा पहना हुआ होता था। शहर आने के 1 महीने बाद अम्मा ने नया टीवी और फ्रिज खरीद लिया। हमारी तो जैसे ज़िंदगी ही बदल गई थी। मैंने ये सब चीज़ें अपने घर में ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। लगे हाथों मैंने अम्मा से मोबाइल फ़ोन की फरमाइश कर दी। उनके पास एक छोटा सा बटनों वाला फ़ोन तो पहले से मौजूद था, मगर अब मुझे अपने लिए नया टच मोबाइल फ़ोन चाहिए था। अब मेरे तो ऐश ही ऐश थे। सारा दिन काम वाम करने के बाद टीवी के सामने बैठी रहती। फ्रिज में खाने पीने की कई चीज़ें हुआ करती थी और गोश्त तो अब हर वक्त घर में मौजूद रहता था। मुझे कभी कभी अपने बाबा की बहुत याद आती। वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते थे और हम महीनों बाद थोड़ा सा गोश्त घर में पकाया करते थे। और अम्मा के दम दरूद के काम को तो हमारी काया ही पलट दी थी। अच्छे अच्छे खाने और नए नए कपड़े जो मिलने लगे थे, मगर मुझे कभी कभी ये ख्याल ज़रूर आता था कि दम दरूद करने में इतना पैसा भी मिल सकता है क्या। शहर में अब हमें 6 महीने बीत चुके थे और मेरा नया मोबाइल फ़ोन भी आ चुका था। एक दिन अम्मा ने कहा कि किसी से मिलने हैदराबाद जाना है। मैंने सोचा कि हैदराबाद कौन रहता है जिसके पास जाना है। अम्मा ने बताया कि उनकी एक दोस्त है, उसी से मिलने जाना है। हम दोनों तैयार हो गए और शहर के बस अड्डे पर जा पहुँचे। हैदराबाद जाने वाली बस आई तो हम उसमें जा बैठे। कुछ देर तक बाकी मुसाफिर भी बस में चढ़ने लगे और फिर टिकट के पैसे लेने कंडक्टर भी आ गया। मगर उस दिन तो बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया। हुआ यूँ कि जब कंडक्टर पैसे लेने आया तो वो गौर से अम्मा की तरफ देखने लगा, जैसे अपने दिमाग पर बहुत ज़ोर देकर पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अम्मा पहले तो इधर उधर देखती रहीं। जब कंडक्टर ने अम्मा को घूरना बंद न किया तो अम्मा ने अपना मुंह छुपाकर सीट से उठने का मुझे इशारा किया और फटाफट बस से उतरने लगी। मगर जैसे ही अम्मा बस से उतरने लगी, कंडक्टर ने अम्मा का हाथ पकड़ लिया। मैं इतनी हैरान थी कि इस सारे मामले को समझने से कासिर थी और मेरी जान तो तब निकली जब कंडक्टर ने मेरी अम्मा को गालियां देना शुरू कर दी। वो अम्मा को फ़कीरनी, लुटेरी और चोरनी कह रहा था और जाने क्या क्या कह रहा था। मुझे तो अब सुनाई देना भी बंद हो गया था और फिर दिखाई देना भी कम होने लगा था। मुझे चक्कर आ गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था।
मैं चकरा के गिर पड़ी तो अम्मा की जान छूटी और वो रिक्शा रोककर मुझे उसमें बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और अम्मा मेरे पास परेशान बैठी थी। मैंने अम्मा से कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से लेटी रही। 2 घंटे बाद डॉक्टर ने मुझे छुट्टी दी तो हम दोनों घर पहुंचे। आज अगर मैं बेहोश ना होती तो शायद इस वक्त हम जेल में होते या बस स्टॉप पर लोगों से जूते खा रहे होते। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लग जाता, मगर मैंने सोच लिया था कि अम्मा से एक लफ्ज़ नहीं कहूँगी। हाँ, पर मुझे रह रह कर अम्मा पर अफसोस हो रहा था कि क्यों उसने लालच का ये रास्ता चुना जिसमें ज़िल्लत और रुसवाई है। घर पहुंचकर भी मैंने अम्मा से कोई बात नहीं की। खामोशी से जाकर अपने कमरे में लेट गई। अम्मा मेरे लिए खाना बनाकर कमरे में ले आई और मेरा हाथ पकड़ाकर मुझे उठाकर बिठा दिया और मेरे सामने रोने लगी। फिर खुद ही आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी कि जब उस दिन वो फ़कीरनी आई थी और मैं सारा दिन उसकी झोंपड़ी में गुजार के आई थी तो उसके पास इतना रुपया पैसा देखकर मुझे लालच आ गया। उसने मुझे इस धंधे पर उकसाया कि मैं भी उनके साथ भीख मांगना शुरू कर दूं तो दिनों में अमीर हो जाऊंगी। मैंने सोचा कि सारी ज़िंदगी एक एक पाई जमा करते हाथ खिंच गए थे, मगर खर्चे पूरे ही ना होते थे, ना ज़रूरतें, और मैंने बेटी भी ब्याहनी थी। उस फ़कीरनी के कहने पर मैं हर 2-3 दिन बाद उसके जैसा भेस बदल कर मुख्तलिफ बस अड्डों, घरों और गलियों में जाया करती। और जब मेरे पास पैसा आना शुरू हुआ तो वो भी बिना किसी मुशक्क़त के, तो मेरा लालच बढ़ता गया। फिर यहाँ शहर आना और ये घर लेना भी इसीलिए करना पड़ा कि यहाँ बड़े बड़े अमीर लोग हैं। अम्मा बताते बताते रुक गई और मैं हैरत से आंखें फाड़े अम्मा को देखती रही। अम्मा दोबारा बोलना शुरू हुई कि उसने भीख मांगनी है मगर कोई चोरी नहीं की। उस दिन बस में कंडक्टर को गलत फहमी हुई थी। मैं तो दूसरे अड्डे तक जाने के लिए बस में चढ़ी थी, मगर एक औरत ने शोर मचाकर मुझे चोर चोर कहना शुरू कर दिया और आज बस में वही कंडक्टर था। अम्मा ये सब कहकर रोने लगी तो मुझसे अम्मा की ये हालत देखी ना गई। मैंने अम्मा से कहा कि सब भूल जाओ और याद करो कि बाबा ने किस तरह मेहनत की ज़िंदगी गुजारी और हमेशा हमें हलाल रोज़ी कमाने को तरजीह दी। मेहनत में कभी शर्मिंदगी या ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ती। अम्मा ने मेरी बातों से इत्तफाक किया और कहने लगी कि अब हम दोबारा मेहनत मजदूरी से ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाएंगे। मैंने खुश होकर अपनी माँ को गले से लगा लिया। फिर हमने दोबारा से अपनी ज़िंदगी को किसी नए मोड़ से शुरू करना था, मगर अभी ना दिमाग में कोई सोच आ रही थी, ना दिल किसी चीज़ पर आमादा था। कुछ दिन घर में रहकर हमने ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ शहर में अब खाने पकाने का काम शुरू कर देते हैं। इस काम को पाया तकमील तक लाने के लिए अम्मा की जमा पूंजी ही काम आई। हमने खाने पीने की ज़रूरत का कुछ सामान लिया जो खाने पकाने में काम आता और छोटे पैमाने पर काम करने का फ़ैसला किया। मैंने अपने फ़ोन के ज़रिए इंटरनेट पर अपने खाना पकाने के काम की मशहूरी की और काम के पहले दिन सस्ता खाना के नाम से ऐड लगा दिया। हम जिस इलाके में रहते थे वो भी अच्छा इलाका था। वहाँ घर घर जाकर अपने काम की बात की और 2-3 स्कूलों में और करीबी हॉस्टल में जाकर भी अम्मा ने अपने काम की बात की। मैं अब हर कदम पर अम्मा के साथ रहती थी। इतनी पढ़ी लिखी तो न थी, लेकिन शहर आने के बाद टीवी और मोबाइल से बहुत कुछ सीख ज़रूर गई थी। काम शुरू करने के पहले दिन थोड़े बहुत ऑर्डर मिले, बहुत से मसाइल भी पेश आते, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम चल निकला। आखिरकार हक हलाल की कमाई में मेहनत ज़रूरी थी, मगर अज़मत भी उसी में है। अम्मा को वैसे भी अच्छे अच्छे खाने बनाने आते थे। दूसरा मैं अम्मा की मदद करती और ऐसे हम दोनों सुकून से घर बैठे अपना रिस्क कमा रही थी। इस काम से हमारी जान पहचान वालों में इजाफा हुआ और फिर किसी जानने वाली के तवस्सुत से मेरा एक अच्छे से घर से रिश्ता आ गया। अम्मा ने मेरी मंगनी कर दी और शादी के लिए कुछ वक्त लिया ताकि वो मुझे अच्छे तरीके से रुखसत कर सकें। आज मेरी शादी को 15 साल गुजर चुके हैं। गुजरे हुए कल की कई यादें मेरे साथ साथ सांस लेती हैं। मुझे अब बाबा के साथ अम्मा भी बहुत याद आती हैं, जो मेरी शादी के 2 साल बाद ही दुनिया से चली गई थी, मगर जाते जाते मेरी ज़िंदगी संवार गई। मेरे बाबा का मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का काम बहुत प्यारा था और मेरी अम्मा का खाने पकाने का काम सबसे अच्छा था। मैं अपने बच्चों को नाना और नानी की मेहनत की कहानियाँ सुनाती हूँ ताकि मेरे बच्चे भी बड़े होकर सिर्फ मेहनत से रोज़ी कमाना सीखें। हाँ, वो अलग बात है, अम्मा के लालच के एक काम को मैंने हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर दिया है, मगर आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर अम्मा सच में फ़कीरनी बन जाती तो शायद मेरी औलाद भी किसी झोंपड़पट्टी में भीख मांग रही होती। मगर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने इस मुसीबत से बचा लिया और एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी मुझे दे दी।
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔